Good morning, students of class 4. As I told you in my previous class that in the next class we should start the 7th lesson, that is 4 string band, and also I told you to find out the difficult words whose meaning you don't know. So I think you must have noted in your copy. Now I am sending here with some words which you might have not known the meaning in Hindi. So you have to note down these words in your copy, and then you have to remember all these meanings with a spelling and meaning in Hindi. So let's start the lesson. Okay, if you have book you can see in your book, otherwise I am also displaying the lesson on your mobile screen, but you have to look at your screen carefully and watch the whole video. Okay, so this is it comes on your screen. This is the lesson, the 4 strings band. You are looking here, seeing well. First of all, there are some musical instruments. This is the 7th lesson, the 4 string band, and in warm up there are some musical instruments. You have to find out which are played with the bent strings or drumming. So first, violin. You are looking at it. Wind instruments are flute and accordion, है ना. ये दोनों जो है accordion और flute, ये दोनों wind instruments है. string instruments में आ जाइए वायलिन और गिटार, ठीक है. और ये जो डमिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें तबला और टेम्पोराइन, ये दोनों डमिंग यानी इसको पीटने से बचता है. तो आप आ जाइए. विंड इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन सा है? बांसुरी और हारमोनियम जो दिख रहा है आपको ये है, और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स सितार और वायलिन है, ठीक है. और ये जो तबला है और है ना टेम्पोराइन, ये जो है वो इसको पीटने से, इस पे चोट करने से वो बचता है. चलिए अब आगे की स्टार्ट करते हैं. कहता है ग्रैंड मदर इज अनवेल एंड ऑल द मनी दैट रिया हैड her mother had saved up in a box has already been spent on medicines. Let's read about how Riya finds a way to help the family. कहता है रिया नाम की एक लड़की है, उसकी दादी माँ बीमार है, यानी उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, और जितना सारा पैसा रिया और उसकी माँ ने बचत किया था, एक छोटे से बक्से में देखते हैं बच्चे लोग करते हैं ना, मुन्ना चुका या किस तरह के छोटे से बक्से में जो बचत किया था, वो सारे के सारे पैसे दादी माँ की दवाइयों पे समाप्त हो चुकी थी. आइए पढ़ें रिया के बारे में कि किस तरह रिया ने ऐसा एक उपाय निकाला, तरीका निकाला कि अपने परिवार की मदद किया जा सके. ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है. ग्रैंडमा लाइक्ड इट व्हेन माय फ्रेंड्स सारा RC and hers came home with me because we played music for her. Sarah played the bongo drums, है ना, bongo drums. Hers played the flute, RC played the guitar and I played my violin. कहता है दादी माँ को ये बात पसंद आई थी जब मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरी सहेलियाँ सारा, अर्सी और हर्ष वो मेरे साथ मेरे घर आए थे, क्योंकि हम लोगों ने अपने अपने तरीके से उनके लिए म्यूजिक यानी संगीत बजाया था. सारा ने क्या बजाया? बोंगो ड्रम. बोंगो ड्रम क्या होता है? 2 छोटे छोटे ड्रम होते हैं, है ना, जिसको उंगलियों की मदद से बजाया जाता है. हर्ष ने बांसुरी बजाई थी, आरसी ने गिटार और मैंने अपना वायलिन बजाया था. ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलिए. देखिए नेक्स्ट पेज थोड़ा सा जूम कर देते हैं और ये इधर कर देते हैं ताकि आपको सही दिखे. Then grandma felt sick and couldn't even leave
her room. I wondered when she would be able to step out again. The whole house seemed so empty and quiet. और कहता है तब उसके बाद दादी माँ बीमार पड़ गई और वह इतना बीमार पड़ गई कि वो घर से अपने कमरे से भी नहीं निकल पाती थी। मुझे आश्चर्य होता था कि फिर कब दोबारा दादी माँ अपने कमरे से बाहर निकलेगी। पूरा घर ऐसा मानने लगता था कि बिल्कुल खाली खाली शांत शांत सा हो, क्यों दादी माँ का बीमार पड़ने से। One day as I was playing my violin, I remembered the stories my mother had told me about grandma and her love of music. When grandma was a little girl, she used to play the violin too. She would play at parties so that everyone could dance and sing. She was so good at it that when people went home, they would leave money on the table for her. कहता एक दिन जब मैं अपना वायलिन बजा रही थी, कौन रिया बता रही है कि एक दिन जब मैं अपना वायलिन बजा रही थी तो मुझे उन कहानियों के बारे में याद आया जो मेरी माँ ने मुझे दादी माँ के और उसके म्यूजिक के प्रति जो शौक़ था, प्रेम था, उसके बारे में बताई थी, है ना। कहता है उसकी मम्मी ने उसे एक बार उसकी दादी माँ और दादी माँ का म्यूजिक यानी संगीत के प्रति कैसा प्रेम था इसके बारे में बताई थी। वो बातें इसको रिया को याद आया एक दिन जब वो अपनी वायलिन बजा रही थी। जब दादी माँ एक छोटी बच्ची थी तो वो भी वायलिन बजाया करती थी, है ना। और वो कब बजाती थी? पार्टियों में, ताकि जो पार्टी में आए हुए लोग थे, अतिथि थे, वो सारे लोग नृत्य कर सके और गा सके। वो इतनी अच्छी इसे बजा लेती थी कि जब लोग घर जाते थे तो वहाँ पे टेबल पर उनके लिए पैसे छोड़ जाते थे। यानी उनके म्यूजिक से, उनके संगीत से लोग इतने प्रभावित होते थे कि वो उनके लिए पैसे छोड़ जाते थे। That is when I had an idea. I could help fill up the money box again. I ran to grandma's room. Grandma, I whispered. और यही कारण था, तभी मुझे एक युक्ति सूझी, एक विचार सूझा। मैंने ये सोचा कि जो बक्स खाली हो गया है पैसों से, जो दादी माँ के दवाइयों में, दादी माँ के इलाज में जो बक्से में पैसा था, वो जो खाली हो गया था, उसे मैं कैसे भर सकती थी। मैं दौड़ती हुई दादी माँ के कमरे में गई और धीरे से फुसफुसाकर बोली, दादी माँ। उसके बाद आई है, Is that you, Riya? She answered in a sleepy voice. I was just having such a nice dream about you. Come and sit with me. तो उसकी दादी माँ नींद में ही, मतलब नींद से लोग जागता है ना, तो थोड़ा थोड़ा नींद की खुमार रहता है, तो उसी तरह नींद में ही थी दादी माँ और उसने जवाब दिया, क्या तुम रिया ही हो, है ना। मैं अभी एक बहुत अच्छा सपना तुम्हारे बारे में देख रही थी। आओ मेरे पास बैठ जाओ। लेट मी ब्रश योर हेयर ग्रैंडमा। आई ब्रश्ड ग्रैंडमा से आई टोल्ड हर माई आइडिया। तो रिया दादी माँ से बोलती है, दादी माँ लाइए मैं आपके बालों में कंघी कर देती हूँ, है ना। और वो दादी माँ के बालों में कंघी करने लगी एंड उनको अपनी योजना जो थी, युक्ति थी, जो विचार आया था, उससे अवगत कराई। She thought it was a great idea. But tell me the truth, grandma, do you think we can really do that? कहता है कि उसने तो एक बहुत अच्छा योजना सोची थी, लेकिन दादी माँ आप हमें सच सच बताइए कि क्या ये वास्तविक में हम लोग ऐसा कर सकते हैं? आपको ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसा कर पाएंगे? Of course you can, no question at all, she answered smiling. Go ahead and ask your friends right away. तो दादी माँ उसे प्रोत्साहित करते हुए कहती है, बेशक आप लोग ये कर सकते हो, है ना, नहीं का कोई सवाल ही नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दी।
आगे बढ़ो और अपने मित्रों से अभी तुरंत इसके बारे में बात करो, पूछो। एंड दैट वॉज हाउ द 4 स्ट्रिंग्स बैंड वॉज फॉर्म्ड। और इस तरह से 4 स्ट्रिंग्स बैंड का निर्माण हो गया, गठन हो गया, रचना हो गई। तो आज बच्चों इतना ही रहने दो, है ना। फिर अगले क्लास में हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन को कंप्लीट करेंगे, बताएंगे, ठीक है। ओके, बाय। फिर हम इसको, लेकिन आप लोग स्वयं से ज़रूर एक बार पढ़ करके हिंदी करने का प्रयास कीजिएगा और मीनिंग भी इसका याद कीजिएगा, ठीक है ना। अपने फेयर कॉपी में मीनिंग कर लीजिएगा और इसको एक बार खुद से रीडिंग दे करके देखिएगा कि आपको कितनी बात समझ में आई या कहीं गड़बड़ाते हैं, तो फिर आप मुझसे संपर्क कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वी विल सी अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।